You have a trading idea. Is it possible to develop an indicator for your idea on TradingView using ChatGPT? Also, is it possible to backtest your strategy for free on TradingView using ChatGPT? Chasela, no way. Before ChatGPT, I struggled for over 6 months to shortlist and backtest 10 intraday trading strategies to include them in my book, The Subtle Art of Intraday Trading. Now we have ChatGPT. Do you think ChatGPT will help in this case? Let's find out. फ्रेंड्स इन दिस वीडियो में मैं एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू डेवलप एन इंडिकेटर इन ट्रेडिंग व्यू and I'm trying to develop a strategy in this indicate using that indicator, and I also want to back test that indicator and strategy in the trading view with the help of ChatGPT. So without wasting much time, let's start. So before I went into the coding part, I want to explain what is the main strategy actually. So my strategy involves RSI. So I will plot RSI and I will explain the concept. Then I will start with the coding part. So basically, when we select RSI indicator on TradingView, it contains many parameters. So इस पे बहुत सारे parameters होता है. पहले मैं एक थोड़ा settings change करना चाहता हूँ. So if I go here, so there are many things actually. I don't need all these things. मैं RSI सिर्फ चाहिए, मैं बोलिंजर नहीं, ये सब नहीं चाहिए. मैं इसको निकालता हूँ. RSI यूजुअली अपर बैंड रहता है. मैं explain करता हूँ first. Okay, so basically an RSI indicator looked like this, and many people say वो above 70 is overbought, below 30 is oversold, उस तरह कहते हैं. And many traditional traders advise that above 70 पे हमें sell करना चाहिए, below 30 पे हमें buy करना चाहिए, उस तरह कहते हैं. So that is not a good idea, because in a trending market, RSI will stay above 70 for a more duration, and in a downtrending market it can stay below 30 for a more duration. So मेरा कहना बहुत आसान है. लेट मी चेंज दिस. अरे इधर गया तो. सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल. वी शुड हैव ओनली टू थिंग्स. इनपुट्स पे, स्टाइल पे. ओके, सो अपर बैंड शुड बी 60 and lower band should be 40. Okay, so in my opinion, above 60 is bullish actually, and below 40 is bearish, and we can expect a sideways move in between 40 60. For example, इधर देखिए. For example, इसको मैं enable करता हूँ. Okay, so इधर देखिए आप, RSI 60 के ऊपर आ गया इधर. So प्राइस इधर देखिए, इधर से पूरा बुलिश मोमेंटम हो गया. सर कब तक? इधर तक नहीं तो इधर तक. इधर तक देखिए, इधर तक बुलिश मोमेंटम था ना, और इधर तक भी बुलिश मोमेंटम था. सो इधर से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इस तरह आता हूँ लेफ्ट साइड पे. आई विल क्लियर दिस. इधर देखिए. सो इधर से वो बियरिश मोमेंटम आ गया ना, RSI नीचे 40 से नीचे चला गया. ओके, सो इट स्टेड टिल बियरिश मोमेंटम टिल दिस पॉइंट. सी इट इज वेंट डाउन साइड. सो इधर से इधर तक देखो, RSI 40-60 पे बीच पे रह गया. सो ये कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट. एंड इधर भी देखो, इधर से इधर तक वो बीच RSI इज इन बिटवीन 40 and 60. सो प्राइस इज इन कम्प्लीटली साइडवेज मोड. सो मेरा कहना है कि सो वी कैन एक्सपेक्ट बुलिश मार्केट अबव RSI 60, बियरिश मार्केट बिलो 40 एंड साइडवेज मार्केट बिटवीन एंड 40-60. ये मेरा मानना है. बट देर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम. ओके, द प्रॉब्लम इज, for example, okay, so there is a problem here. See, so RSI stayed above 60 only for a small duration here, and here. So if you have taken a long trade in this case, or in this case, we would have lost money, right? इधर. Okay, so yes, एक छोटा सा प्रॉब्लम है. और इधर भी देखिए, RSI 40 के नीचे थोड़ा टाइम तक रह गया, इधर और इधर, and here also. So if you have taken a short trade at this point of time, you would have lost money also. So इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि instead of using RSI, we can use RSI MA actually. Okay, for a smooth period of 5 period. मैं explain करता हूँ. I will go to settings.
I will go to settings. I will plot instead of RSI, I'll plot RSI MA. Okay. So I'll make this black so that it is completely visible. I'll make it thicker. So हमें RSI MA use करना चाहिए. What it does is it smoothens out the curve actually. And RSI MA period should be 5 actually. If I go to inputs, देखिए MA by default 14 रहता है, इस पे 5 होना चाहिए. And okay, okay. So ये हमारा इंडिकेटर है. So I will be using this. So if the RSI is above RSI MA, okay, is above 60, I will look for long trade. If RSI below 40, I will look for short trade. Okay. So this is the strategy. Strategy तो बहुत simple है. Now I want to try to develop an indicator which indicates buy and sell signal whenever the RSI goes above 40 or 60. Okay. So मैं चार्ट जीपीटी जाता हूँ. So चार्ट जीपीटी में बहुत सारे जीपीटीज होता है विच आर स्पेसिफिक टू सर्टेन कॉन्सेप्ट. सो ट्रेडिंग के लिए भी एक कुछ सारे जीपीटीज है. मैं उसको चेक कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इधर देखिए ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे जीपीटीज है. ओके. सो मैं पहला वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पुराना है. सो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस जीपीटी. ओके. So what I'm doing is I've come to this. So what I'm trying to say is write an code. ये ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ये पाइन एडिटर का कॉन्सेप्ट होता है. सो इट शुड बी इन पाइन एडिटर. राइट ए कोड इन पाइन एडिटर. पाइन एडिटर फॉर ट्रेडिंग व्यू. Write an code in Python for a new indicator, for a new technical indicator based on RSI MA, where RSI MA is 5 period. A buy and sell signal should be generated and plot on the price chart when the RSI MA is above 60 for long trade and RSI MA is below 40 for short trade. ठीक है ना. So write a code in Pine Editor for TradingView for a new technical indicator based on RSI MA, where RSI MA is 5 period. A buy and sell signal should be generated and plotted on the price chart when RSI MA is above 60 and long trade and the RSI MA should be below short. So I would say I will also say no need to plot RSI MA on the chart because हमें वो plotted है ना, so no need to plot it. Otherwise sometimes what happens is it will also plot the RSI values, it will also plot the price, so वो compress हो जाता है, it will not look good actually. इसीलिए मैं इस तरह कह रहा हूँ. So this GPT instructions ले रहा है generate above 60 sell signal below 40. See ये ले रहा है. So if we go to Nifty, we go to ट्रेडिंग व्यू. आप इधर पाइन एडिटर है ना, हमें इधर ऐड करना पड़ेगा. सो आई विल कॉपी दिस. मुझे क्या होता है कि मुझे ये कोड थोड़ा पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आता है, लेकिन लिखने के लिए आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट अबाउट इट बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स, दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द कोडिंग पार्ट. सो व्हाट इट डज इज ये दिखा रहा है, ये इंडिकेटर है, नया इंडिकेटर है. RSI सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट 14 है. इट इज़ कैलकुलेटिंग RSI. सो RSI आई थिंक इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा. पीरियड में 5 आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन. इट इज़ कंडीशन, लॉन्ग कंडीशन के लिए RSI शुड बी ग्रेटर देन 60 40. ये प्लॉट कर रहा है. देखो ये आसान है अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तक, बाद में शायद मुश्किल होगा. ओके, आई विल गो हियर. आई विल सो व्हाट आई डू इज मैं एक कोशिश किया था. प्रॉबली व्हाट आई डू इज आई गो टू पाइन एडिटर. मैं करता हूँ, सो सेव करता हूँ एंड
ऐड टू चार्ट करता हूँ। ओके, सो बहुत सारे ये आ रहा है। ओके, बहुत सारे सेल आ रहा है। ये देख, RSI 40 से नीचे चला गया। सो बहुत सारे ये आ रहा है ना। इधर इधर देखो, हर कैंडल पे ये सेल दिखा रहा है। सो इट मीन्स इट इज ट्राइंग टू जनरेट ए सेल सिग्नल फॉर एवरी कैंडल विच इज लेस देन 40। सो मैं चार्ट जीपीटी को क्या इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि अवॉइड अवॉइड डुप्लीकेट buy and sell signals in the above code लिखता हूँ. So it should avoid it should add a condition. Suppose if there is a long trade, it will not trigger another long trade. उस तरह कहता है. So it will add a parameter. Let's see. कैलकुलेट हो रहा है, RSI भी हो रहा है. सी देखिए, वेरिएबल टू ट्रैक द स्टेट ऑफ द लास्ट सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज क्रिएटिंग एन वेरिएबल. ये 0 1 सेट कर रहा है. सो 0 फॉर बाई, -1 फॉर सेल, उस आई मीन 1 फॉर बाई, -1 फॉर सेल, 0 फॉर नन. सो सपोज इफ द पैरामीटर इज 1, ये दूसरी लॉन्ग ट्रेड नहीं दिखाता है. सो उस तरह इसको चेक करते हैं. सो लेट्स कॉपी दिस एंड गो हियर एंड पाइनेटर पे जाएंगे. आई विल पुश दिस सबसाइड. अरे ऊपर जाओ भाई. अरे ये इंडिकेटर का है. ओके, इधर. सो मैं इसको कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ये नया कोड इधर पेस्ट करता हूँ. आई विल सेव एंड आई विल अपडेट ऑन चार्ट. इट शुड रिमूव ऑल द डुप्लीकेट एंट्रीज. हाँ, रिमूव हो गया. देखिए, फॉर एग्जाम्पल इधर सेल आ गया ना. सो RSI का इस कैंडल पे RSI 40 नहीं था. यू कैन सी हियर, इधर दिखता है ना. सो इफ इट इज लेस देन 40, द क्लोजिंग वैल्यू इज लेस देन 40, इट विल प्लॉट. सी इन दिस केस इट इज 40.97. सो इसीलिए इट डिडंट जनरेट अ सेल सिग्नल, इट जनरेटेड हियर. सो इट कंटिन्यू चला गया. वेन एवर RSI गोस अबोव 60, इट विल प्लॉट अ बाई सिग्नल. देखिए नीचे अच्छी तरह से चल रहा है ना. ओके, सो अभी इस तरह दिखा रहा है. ओके, ये अभी तक ठीक है. ओके, सो इट विल बाई. RSI इस कैंडल पे 57 था, इस कैंडल पे 60 के ऊपर चला गया, 61 हो गया RSI में. सो इसीलिए वो बाई सिग्नल जनरेट किया. सो अभी हम क्या करते हैं कि बेसिक तो हो गया, अभी हमें स्टॉप लॉस दिखाना पड़ेगा ना. सो आई विल जस्ट ऐड अनदर कंडीशन. फॉर एग्जांपल हम स्टॉप लॉस बहुत सारे तरीके से डाल सकते हैं. सो आई विल यूज एन सिंपल स्टॉप लॉस लाइक 0.5% from the entry price. So for a long trade, 0.5% below from the entry price. For a short trade, 0.5% above the short price, so entry price. So उस तरह मैं अमेंड करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या रेट करता हूँ कि इन द above code प्लीज add a stop loss condition for both long and short trades. Okay, so 0.5 stop loss should be stop loss should be 0.5% above the entry price for long trades and 0.5% below the entry price above the entry price. ये short trades के लिए होना चाहिए. 0.5% above the entry price for short trades and 0.5% below the entry price for long trades. ये ठीक है. Also plot the stop loss line. इस तरह मैं दिखता हूँ. So let's see whether it will generate a code or not. ChatGPT तो बहुत smart है, but to include a stop loss condition or point script, we need to define stop loss levels for both long short trades, then plot percent. तो ठीक है, the stop loss for a long trade will be set 0.5% below the entry price and for a short trade it will be set 0.5 above the entry price. ये ठीक है. Here is the modified code. Oh, ChatGPT बहुत smart है लोगों. Bye. RSI में कैलकुलेट हो रहा है, लास्ट सिग्नल चेक कर रहा है.
0.95 ये 0.5% सेट कर रहा है. रीसेट स्टॉप लॉस लेवल इफ द अपोजिट सिग्नल अकर्स, ये रीसेट भी कर रहा है. See, this is very very simple. After the introduction of ChatGPT, coding is become very very easy. So most people can do this kind of stuffs. अभी ये प्लॉट हो रहा है बाई और सेल सिग्नल. आई थिंक इट इज़ डन. ओके, अभी प्लॉट स्टॉप लॉस लेवल प्लॉट कर रहा है. सो प्लॉट सीरीज, टाइटल, लॉन्ग ट्रेड, स्टॉप लॉस, color it. Oh, I think it will plot the two lines. I expected only one line. अभी ये दो लाइन प्लॉट कर रहा है. ओके, देख लेंगे. सो मैं इसका पूरा कॉपी करता हूँ. कॉपी कर कर इधर जाता हूँ और पाइनेटर पे जाता हूँ. ऊपर जाओ भाई. ओके, डिलीट कर कर नया कोड डालता हूँ. सो सेव और अपडेट ऑन चार्ट. ओके, देखिए ये फॉर एग्जांपल ये रेड लाइन है ना. रेड लाइन बाई के लिए स्टॉप लॉस होगा. लेट मी चेक इन द कोड. स्टॉप लॉस, लॉन्ग ट्रेड स्टॉप लॉस रेड पे है. हाँ है, ठीक है. लॉन्ग ट्रेड स्टॉप लॉस रेड पे. ये ट्रेड ले लिया ना. सो दिस इज़ द एंट्री प्राइस. सो 0.5, 21,454, 21,456, 0.5% कितना होता है ये इधर आता है. सो ये स्टॉप लॉस डाल चुका है. और सिमिलरली फॉर शॉर्ट ट्रेड के लिए ये शॉर्ट ट्रेड एंट्री प्राइस इधर होता है. सो 0.5% ये इधर आता है. सो इज़ इट पॉसिबल टू कंबाइन बोथ द लाइन्स? मुझे एक ही स्टॉप लॉस लाइन चाहिए. मैं चेक करता हूँ एक बार. प्लीज़ कंबाइन द stop loss lines for both the long and short trades and plot only one stop loss line on the chart. इस तरह आ गया तो हमें ट्रैक करने के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए ये मेरा प्लान है. सपोज नहीं आ गया तो आई विल गो बैक टू द ओरिजिनल कोड. So it is saying to combine stop loss lines for both long and short into a single line on the chart. We will create a unified stop loss level that updates based on the most recent trade type. Here is the reverse script. हाँ, ये पहले देना पड़ेगा ना. हमें सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस लाइन चाहिए. Why do we need two stop loss lines? Okay, अभी कुछ ना कुछ लिख रहा है. आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैलकुलेट RSI को कैलकुलेट कर रहा है. पीरियड MA कैलकुलेट कर रहा है. सो इट बिकम वेरी स्लो ऑलरेडी. सो वेरिएबल सेट कर रहा है वो टू अवॉइड द डुप्लीकेट्स. डिफाइन द लॉन्ग एंड शॉर्ट कंडीशंस. लॉन्ग कंडीशन लिख रहा है 60 के ऊपर एंड शॉर्ट कंडीशन लिख रहा है कैलकुलेट एंड अपडेट द स्टॉप लॉस लेवल. ये लॉन्ग कंडीशन के लिए चेक कर रहा है. दिस इज़ रियली गुड. अभी सिर्फ हमें एक लाइन प्लॉट करना पड़ेगा. प्लॉटिंग बाई एंड सेल सिग्नल्स को प्लॉट हो गया. अभी लाइन का प्लॉट आना चाहिए. सेल सिग्नल का प्लॉट आ गया. अभी सिर्फ एक स्टॉप लॉस लाइन को ये प्लॉट करना पड़ेगा. आ जाओ. कम सुन. प्लॉटिंग यूनिफाइड स्टॉप लॉस लेवल, एक ही लाइन आना चाहिए. टाइटल यूनिफाइड स्टॉप लॉस. यूनिफाइड क्यों है, बस स्टॉप लॉस काफ़ी है. ये ऑप्शनल है. आई थिंक इट्स आ गया. सो मैं चेक करता हूँ वेदर इट विल वर्क प्रॉपरली और नॉट. आई विल गो टू पाइन एडिटर. इधर सेलेक्ट कर पेस्ट करता हूँ और सेव कर अपडेट ऑन चार्ट. ओके, ये अपडेट हो गया. लेट्स सी वेदर वेरीफाई ये अच्छी तरह से आ गया या नहीं. ओके, देखो दोस्तों, एक ही स्टॉप लॉस आ गया. ये बाई सिग्नल आ गया ना इधर. सो इसके ऊपर ट्रेड ले चुका है. ये एंट्री स्टॉप लॉस लेवल है. ओके, सो और ये पुराना वाला शॉर्ट ट्रेड इधर एंट्री हो चुका है. सो ये स्टॉप लॉस लेवल है. अच्छा आ रहा है. देखो और एक ट्रेड को एग्जांपल करेंगे. ये बाई ट्रेड है. सो इसका नीचे 0.5% स्टॉप लॉस लाइन आ चुका है. ओके, सो अभी हमारा इंडिकेटर थोड़ा रेडी है, लेकिन इट डजेंट वर्क प्रॉपरली. वाई? बिकॉज हमें लेट्स से वी हैव टेकन ए शॉर्ट ट्रेड हियर. ओके, सो इफ़ यू वेट अंटिल इट हिट्स, देर इज़ नो यूज़, राइट. इधर बाई सिग्नल का जनरेट हो गया. हमें स्टॉप लॉस को ट्रायल करना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इधर स्टॉप लॉस फिक्स्ड है.
ओके, सो माई आइडिया नाउ इज आफ्टर द एंट्री प्राइस हमारा स्टॉप लॉस 0.5% पे है ना. सो व्हाट आई डू इज प्राइस एंट्री के बाद हमारा डायरेक्शन में 0.5% मूव हो गया तो आई विल try to trial the stop losses using an ATR indicator. We can use any indicator, but I will prefer to use ATR indicator. So I will amend the code. I will go here. This is excellent, ChatGPT. Okay. So in the above code, add a condition, to trial our stop loss. In the above code, add a condition to trial our stop loss when the price moves 0.5% in our direction, in our trade direction. In the above code, add a condition to trial our stop loss when the price moves 0.5% in our trade direction from the entry price. Using an ATR indicator, where ATR multiplier is 2.5 2 चलता है 2.5 अच्छा है. सो पहले 2.5 पे चेक करेंगे, देन वी विल सी. ओके, मैं ये कंडीशन डाल रहा हूँ. It is saying we will use the average true range indicator with 2.5 multiplier as a basis for adjusting the stop loss level. The stop loss will start trailing once the price moves 0.5% in favor of the trade from the entry price. Here how the script can be modified. अब तक तो आ गया. देखिए ये अपडेटेड कोड है. इधर से इधर तक ये है ना, इधर से इधर तक ये ATR का कोड आ गया. Okay, so what I do is I'll copy this. I'll go to trading view. I'll go to Pine editor. So everything should be same, but after the 0.5% move in our direction, it should start trailing our stop loss. Okay, so ये बहुत important है. Save and update on chart. Okay, ये update हो गया नहीं? Error आ रहा है ना? Could not find function or function reference max. So what I do is could not find function. Could not find function or function reference max. Or function reference max. So what I say is, I will say I'm getting the above error from the above code. Please fix this issue. Due to the max and min functions incorrectly in PineScript correct function used for this one math.max maths वो ऐड करना पड़ेगा. You should have add no ChatGPT. Why are you giving extra work? Let's see, it should plot properly now. 1.05 for long trade. This math and min, I think last time it was not there, I guess. See, if we check here, I think see it is used only max and min directly. अभी math dot add कर रहा है, so इसीलिए it will fix the issue, I guess. अभी plot हो रहा है, let's see. I mean I might be wrong or I might be right. मैं एनालिसिस के साथ थोड़ा कोड भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करता हूँ. सो अभी प्लॉट हो गया. ओके, आई थिंक नाउ इट शुड प्लॉट. ओके, कंट्रोल ए मैं डिलीट करता हूँ एक बार. कंट्रोल वी, सेव, अपडेट ऑन चार्ट. इधर देखिए कंपाइलिंग हो गया, इंद्रजीत इंडिकेटर आ गया. अभी मैं इसको क्लिक किया तो नीचे जाता है. ओके, ये अच्छी तरह से वर्क हो रहा है. देखो
देखिए फ्रेंड्स, इन दिस केस पे ये हमारा एंट्री प्राइस है, ये हमारा एंट्री प्राइस है। सो इधर तक 0.5% पे था। सो इधर से इधर तक आ गया तो वो 0.5% मूव हो गया नीचे तरफ से हमारा डायरेक्शन पे। सो इधर से ATR ट्रायलिंग स्टार्ट हो गया ना। ओके देखिए, सो इट वुड हैव बीन हिट स्टॉप लॉस इन दिस केस। सो बाद में हमारा लॉन्ग ट्रेड इधर ट्रिगर हो गया, वुड हैव टेकन ए लॉन्ग ट्रेड हियर एंड हमारा स्टॉप लॉस इधर ट्रिगर हो गया। सो ई डिडंट ट्रायल द स्टॉप लॉस बिकॉज 0.5% हमारा डायरेक्शन पे मूव नहीं हो गया था। सो और कुछ देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इधर बाई ट्रेड। सो वी वुड हैव टेकन ए लॉन्ग ट्रेड हियर एट द क्लोज ऑफ दिस, at the close of this. So this is initial 0.5% stop loss. Price didn't move 0.5% upside. So ये continuous था. It would have taken a stop loss somewhere in this trade. So और पीछे गया तो इधर देखिए, ये इधर क्लोजिंग प्राइस है। सो नहीं, क्लोजिंग प्राइस इधर है। विड हैव टेकन ए शॉर्ट ट्रेड हियर। सो इधर से 0.5% नीचे मूव हो गया। सो इधर से ट्रायलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट हो गया। ओके, और इस तरह आई मीन मुझे तो अच्छा दिख रहा है। ओके, सो अच्छा दिख रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू पाइन एडिटर। मैं इसको पब्लिश करता हूँ। सो नाउ एज ऑफ नाउ इट इज़ इन माई लोकल थिंग। सो अपडेट एंड चार्ट बोले तो इधर आ जाता है। सो पब्लिश किया तो दैट इंडिकेटर विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। आई मीन अगेन देर आर टू थिंग्स, पब्लिश वर्ल्ड इन पब्लिक डोमेन और प्राइवेट डोमेन। सो पब्लिश इंडिकेटर पे आ गया तो हमें न्यू स्क्रिप्ट RSI MA स्ट्रैटेजी ट्रायलिंग स्टॉप लॉस इधर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो RSI MA स्ट्रैटेजी विथ TSL लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि RSI/ETR, अदरवाइज मेरा नाम लिख लेता हूँ, इंद्रजीत RSI/ETR इंडिकेटर, इस तरह लिख लेता हूँ। एंड आई वांट टू पब्लिश एज अ न्यू स्क्रिप्ट दिस इंडिकेटर generates buy or sell signal using RSI and ATR indicator। ये काफ़ी है। चूज़ वन कैटेगरी मूविंग एवरेज भी है, oscillators, I think I will select oscillator is fine। okay, and then probably I will select moving average also। okay, so ये नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं बोल जाता हूँ। कंटिन्यू प्राइवेट और पब्लिक में पब्लिक कर लेता हूँ। डू यू वांट पब्लिक फ्रेंड्स? एनीवे आई विल मेक इट पब्लिक कर लेता हूँ। आई थिंक समटाइम्स दे गिव सम रूल्स एक्चुअली। सो रूल्स को चेक करना पड़ेगा। पब्लिशिंग रूल्स, विजिबिलिटी, प्राइवेट, कुछ ना कुछ है। मैं ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं कोशिश करता हूँ। इफ़ दे डोंट अलो प्रॉबेबली आई विल गो फॉर प्राइवेट थिंग। ओके, सो पब्लिश पब्लिक स्क्रिप्ट्स कर दिया मैंने। हाँ, पब्लिश हो गया दोस्तों। इंद्रजीत RSI/ETR इंडिकेटर पब्लिश हो गया। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि इधर आकर, अरे इस पे इस तरह जाओ भाई, इट्स नॉट कमिंग। एक मिनट दोस्तों, ये मुझे मेरा फ़ोटो इधर आ रहा है, कैमरा आके इधर, मेरा कैमरा के नीचे क्लोजिंग बटन है। ओके, ये क्लोजिंग हो गया। मेरा कैमरा इधर मूव करता हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट वी डू इज सी, अभी हमें पता है कि आई हैव प्लॉटेड एन इंडिकेटर। ये नहीं आता, ये डिफ़ॉल्ट में इसको क्लोज कर लेता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन से। सो इवन दो दिस इज माई इंडिकेटर which uses RSI and ATR, I am not displaying anywhere outside। okay, so अभी मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई चेक इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर आ रहा है ना, ये पब्लिक डोमेन में है ना, बाई सेल इंडिकेटर आ रहा है। सो व्हाट इज़ द नेम आई गिव, आई जस्ट वांट टू कॉपी। मेरा नाम क्या था? गो टू टेक्स्ट, what is the name I give? I gave Indrajit RSI/ETR indicator. So this is not the one. This is not the one. So what I do is I'll close this. I'll go to indicators. I think it might take some time to
appear. So I will go to my scripts. I think definitely it will be there. RSI buy sell indicator. I think I gave the name of RSI ATR indicator. So did I save it? If I go to Pine editor, save सेव हो चुका है. Buy sell indicator. Okay, it is saving as RSI buy sell indicator. So it is already there. RSI मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि इधर दिखा रहा है इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर, इधर दिखा रहा है RSI MS स्ट्रेटेजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. प्रोबेबली आई हैव पब्लिश्ड नेम, पब्लिश द इंडिकेटर विद दैट नेम. ओके, पब्लिश इंडिकेटर गया तो इस तरह आ रहा है ना RSI. सो RSI MS स्ट्रेटेजी. सो आई थिंक आई गेव द नेम ऑफ दिस. मुझे एज पर याद है मैं ये नाम दिया था, इंद्रजीत RSI ATR इंडिकेटर नाम दिया था. मैं 2-3 मिनट के लिए वेट करता हूँ. लेट्स सी. मैं वापस आकर अरे क्लोज हो जाओ भाई. यस, मैं क्लोज करना चाहता हूँ. सो मैं वापस आकर इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, स्ट्रैटेजी टेस्टर. सो स्ट्रैटेजी टेस्टर के लिए लोड योर स्ट्रैटेजी. अब मेरा स्ट्रैटेजी लोड करना पड़ेगा. मैं स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर. टेक्निकल्स पे गया तो इंडिकेटर्स पे गया तो मेरा इंडिकेटर है क्या उधर? इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर है, देखिए इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर है. मैं उसको ऐड करता हूँ. अभी ऐड हो गया ना, 1 मिनट. हाँ देखिए ये आ गया बाई सेल. में नया पे जाता हूँ. हाँ ये आ चुका है. बाई इंडिकेटर के नीचे 6.5% स्टॉप लॉस, सेल इंडिकेटर RSI ट्रायल, ये सभी हो रहा है. सो आई विल गो टू स्ट्रैटेजी टेस्टर. स्ट्रैटेजी टेस्टर के ऊपर लोड योर स्ट्रैटेजी. लोड 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 स्ट्रैटेजीज पे इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर लोड तक कर रहा हूँ. ये डुप्लीकेट हो रहा है. डुप्लीकेट होने का नेसेसिटी नहीं है. मैं एक को डिलीट करता हूँ. आई विल डिलीट दिस. लोड तो हो रहा है ना. लोड योर स्ट्रैटेजी लोड हो चुका है. स्ट्रैटेजी टेस्टर मैं इसको भी क्लोज करता हूँ एक बार. लोड योर स्ट्रैटेजी. माई स्क्रिप्ट पे गए तो इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर. इसको सेलेक्ट किया तो क्या होता है? सेलेक्ट हो गया. ट्रेडिंग पैनल पे गया तो नहीं, ये लोड योर स्ट्रैटेजी और नहीं आ रहा. व्हाट आई डू इज आई विल गो टू स्ट्रैटेजी टेस्टर. इधर कुछ ना कुछ आ रहा है शायद. प्रोबेबली इट माइट टेक सम टाइम टू अपलोड. सो एनीवे लेट्स सी. पब्लिश तो हो गया. अरे यार कुछ ना कुछ नहीं. ट्रेडिंग यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस, इस तरह किया था. सो पब्लिश हो चुका है. प्रोबेबली आई नीड टू वेट फॉर सम टाइम. मैं 5 मिनट टाइम लेता हूँ. बाद में आई विल ट्राई टू कम हियर एंड टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी टेस्टर. क्योंकि इधर है. सो स्ट्रैटेजी टेस्टर पे आ गया तो अप्लाई टू द चार्ट. मेक श्योर टू सेलेक्ट राइट सिंबल एंड इंटरवल. सो वी हैव सेलेक्टेड लोड योर स्ट्रैटेजी. माई स्क्रिप्ट पे इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर. इस तरह क्यों दिखा रहा है? सो सो व्हाट आई डू इज अभी पाइनेटर पे हमारा कोड है, स्ट्रैटेजी टेस्टर है. सी वी गेट इन टू दिस काइंड ऑफ थिंग. सो मैं अभी लोड कर रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ टू प्रोसीड. मैं टू टेस्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई टू द चार्ट. चार्ट पे अप्लाई नहीं है. ओके अप्लाई करता हूँ. ऐड टू चार्ट. अभी चार्ट पे मेरा स्ट्रैटेजी है ना. स्ट्रैटेजी है. ओके नाम क्या है?
इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर है, नहीं तो RSI MA स्ट्रैटेजी है। सो स्ट्रैटेजिस्ट पे जाता हूँ, अप्लाई टू द चार्ट, चार्ट पे है एंड मेक श्योर टू सेलेक्ट द राइट सिंबल टाइम इंटरवल। सो मैं लोड कर रहा हूँ स्ट्रैटेजीज पे, वो नहीं आ रहा है, क्या करे। इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर पे आता हूँ, ओके इधर आ गया, तो इट शुड लोड एक्चुअली। सो मैं 5 मिनट कोशिश करता हूँ, वेट करता हूँ, बाद में देखता हूँ। Friends, I think we need to convert this indicator as a strategy. I think as of now it is only an indicator, I guess. So let me check. I'm trying to back test this under under ये क्या है कि strategy tester, under strategy tester, but it is not appearing. What should I do? Let's see ये क्या कहता है. We are completely depending upon ChatGPT. To use your script for backtesting in TradingView, you need to convert it from an indicator script to test script. A strategy script allows you to backtest trading ideas by simulating ideas. क्योंकि आई थिंक इट एंट्री और ये सिर्फ प्लॉटिंग कंडीशन पे है, सो एंट्री एग्जिट इज़ नॉट डिफाइंड और इट्स नॉट ए कन्वर्टेड एज ए स्ट्रैटेजी। शायद एंट्री एग्जिट कंडीशन एक्स्ट्रा आ चुका है होगा, देखो इंडिकेटर से स्ट्रैटेजी कन्वर्ट हो गया। सो सभी सेम रहता है। सो लॉन्ग कंडीशन प्लॉट कर रहा है, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस भी डाल रहा है, और इफ क्लोज ये और ट्रायलिंग स्टॉप लॉस का शायद कुछ लिख रहा है। ट्रेड इज एंट्री किधर है? कॉपी में ऐड स्क्रिप्ट टू द चार्ट, जस्ट ओपन स्ट्रैटेजी टेस्टर। ओके स्ट्रैटेजी पोजीशन कुछ ना कुछ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द कोड आई विल गो हियर, व्हाट इट इज सेइंग इज ओपन ट्रेडिंग व्यू, पाइन एडिटर, कॉपी पेस्ट, मॉडिफाई स्क्रिप्ट, ऐड स्क्रिप्ट टू द चार्ट, देन स्ट्रैटेजी टेस्टर। सो व्हाट आई डू इज, मैं इधर ही हूँ, मैं इसको डिलीट कर इसको कॉपी डालता हूँ। सो सेव, कंपाइलिंग और ठीक हो गया। सो इंद्रजीत बाई सेल इंडिकेटर नाम पा रहा है, ऐड टू द चार्ट। हाँ अभी देखिए आ गया, एंट्री और कंडीशन पे आ गया। ओके पहला चेक करते हैं कि हमारा क्या है। सो देखिए दोस्तों, ये 30% प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट फैक्टर 1.174 है। ये डिसेंट है बट इट इज़ नॉट रियली गुड। ओके सो वी कैन ट्राई टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ दिस। सो टोटल 99 ट्रेड्स आ चुका है। सो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि RSI MA, if it is above 60 I'm planning taking a long trade, if it is below 40 I'm taking a short trade। ATR SL ट्रायल कर रहा हूँ। ओके सो ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेट्स सी चेक फॉर 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी थोड़ा इंक्रीज हो गया, 37% आ गया, प्रॉफिट फैक्टर भी अच्छा हो गया। सो लेट्स गो टू 30 मिनट टाइम फ्रेम। सो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 37% एक्यूरेसी आ गया, प्रॉफिट फैक्टर भी डिसेंट है 1.27। सो दिस इज़ द इक्विटी कर्व। आई थिंक इट इज़ प्रॉबली 1 साल से चेक करता है। तो नीचे आ गया तो देखिए 2022 से सो ऑलमोस्ट ऑल 2 साल का बैक टेस्टिंग रिजल्ट है इधर। सो ये क्या दिखा रहा है ना आपको इधर, ये दिखा रहा है ना, और ये 2 साल का बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, ये इक्विटी कर्व है और ये ड्राडाउन है। सो लेट्स try to what increase the accuracy of this। so let's पहले चेक करते हैं। मैं 50 मिनट पे जाता हूँ, 50 मिनट पे जाता हूँ, शायद probably what I do is I will go to ATR को अमेंड कर देखता हूँ। सो इस पर क्या होगा है कि ATR 2.5 है ना, शायद ATR को 2 करता हूँ। सो ATR को 2 किया तो वो इट डज एन अग्रेसिव ट्रायलिंग स्टॉप लॉस।
सो उस तरह किया तो अभी 29.29% हो गया, प्रॉफिट फैक्टर 1.174% आ गया। सपोज 30 मिनट टाइम फ्रेम पे गया तो 37% एक्यूरेसी है, 1.27 प्रॉफिट है। इक्विटी कर्व डिसेंट है एक्सेप्ट दिस ड्रॉडाउन, इट्स अ बिग ड्रॉडाउन। So my point is, it's not about developing a wonderful trading strategy. My point is how we can test our own strategies, how we can develop our own indicator, and how we can develop our own. How we can backtest our own strategies using TradingView and ChatGPT. That is my understanding. Let's say क्या होता है if I select deep backtesting, वो इस ये सब के लिए प्रो होना चाहिए, मुझे मेरा TradingView प्रो नहीं है। सो मैं आई विल गो टू दिस कोड, आई विल एनालाइज मैं कुछ इम्प्रूव करने के लिए। सो ATR 14 है और MSI 5 है, RSI 40-60 के ऊपर, शॉर्ट ट्रेड लॉन्ग ट्रेड 0.5% इनिशियल स्टॉप लॉस। मैं क्या करता हूँ कि इनिशियल स्टॉप लॉस 0.5% है ना, आई विल डिक्रीज इट टू 0.25%। सो लेट्स सी, मैं डायरेक्टली इधर जाता हूँ, अभी मैं पाइनेटर पे जाता हूँ। इनिशियल स्टॉप लॉस 0.5 है ना, उसको मैं कम कर लेता हूँ। कैसे कम करें इसको, 9925 करना पड़ेगा शायद, 1.005 है ना, 1.0025 करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट हेयर, रिस्क क्यों लो, मैं इधर जाकर इसको चेक करता हूँ। सो फ्रॉम द एबो कोड, change the initial stop loss from 0.5% to 0.25% for both long and short trades. Okay, so मैं इस तरह कर लेता हूँ। So now it is change, it will be 0.25 से 0.5 से 0.25 हो गया होगा। 0.25 हो गया ना, 2.5 है। इनिशियल स्टॉप लॉस किधर है, इट शुड बी 0.25, हाँ इधर है ना, 0.25 आ गया, 1.025। सो इट शुड वर्क नाउ, वर्क तो हो रहा है, इट शुड शो डिफरेंट रिजल्ट्स नाउ। आई गो हियर, आई विल कॉपी हियर, आई विल पेस्ट हियर, मैं सेव करता हूँ, अपडेट एंड चार्ट करता हूँ, स्ट्रैटेजी टेस्टर पे चला जाता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, इधर से रिजल्ट इंक्रीज हो गया ना, देखो 35% एक्यूरेसी इंक्रीज हो गया है हमारा, और प्रॉफिट फैक्टर भी बढ़ गया है, 1.31% है। सो देखिए ये इक्विटी कर अच्छा है, और ये ड्राउन, इसको छोड़ के ड्राउन भी थोड़ा कम हो चुका है। सो वी कैन व्हाट वी डू इज़ वी कैन मॉडिफाई दिस, वी कैन वर्क ऑन सेवरल थिंग्स। इस पे क्या मिस्टेक है कि, और एक मिस्टेक है, मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। सो द मिस्टेक इज़, फॉर एग्जाम्पल एक लॉन्ग ट्रेड लेने के बाद it doesn't close at the end of the day, it is carrying. So if we update our code to exit at the end of the day at 3:20 or 3:20, 3:15 or 3:30, इसका रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। एंड यू शुड आल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इन दिस बैक टेस्टिंग पे आई हैव नॉट इंक्लूडेड द कॉस्ट, आई गेस द एग्जीक्यूशन कॉस्ट। सो क्योंकि एवरी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कॉस्ट भी होता है ना, सो इफ़ एग्जीक्यूट फॉर एवरी ट्रेड देर विल बी सम कॉस्ट, वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं हो चुका है इधर। सो उसको इंक्लूड किया तो ये शायद थोड़ा डिफरेंस होता है, डेफिनेटली डिफरेंस आता है। So my intention is not to provide a profitable trading strategy for you. My intention of this crazy experiment is to uh, uh, plot an indicator, develop an indicator on TradingView, and to plot that indicator and how to backtest that indicator and the strategy as well. So इधर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, देर आर मेनी आइडियाज यू कैन डेवलप फ्रॉम दिस, यू कैन ऐड एन इंडिकेटर और यू कैन ऐड ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। आप इस तरह प्राइस एक्शन ऐड कर कर चार्ट जीपीटी को यूज़ कर कर आप यूज़ कर सकते हो। सो नाउ यू कैन यूज़ दिस इंडिकेटर फॉर टाइम बीइंग, यू कैन यूज़ दिस RSI MS स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, चेक किया तो आ जाता है, और मेरा नाम सर्च किया तो भी आ जाता है।
तो इंद्रजीत बाइसेल इंडिकेटर आ जाता है, आप प्लॉट कर कर यूज़ कर सकते हो. सो नाम तो इस तरह दिखता है, लेकिन इट इज़ इंद्रजीत RSIMA. आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ ग्रेट इंडिकेटर, बट दिस इज़ अ वी कैन स्टार्ट. So this is my first experiment to create a video, to develop a strategy and to publish the strategy and backtest the strategy. So do you want me to conduct more strategies videos like this? If yes, please like this video and please comment in the comment section, because if I don't understand, if I don't know whether many people will know this or not. So if you definitely need these kind of videos, please comment in the section and please share your opinion also. And if you have any other ideas to improve these kind of strategies, you can also mention it. Or if you have any other ways of backtesting a strategy or developing a strategy, please comment on it as well. So देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, आई एम नॉट वेरी पैशनेट अबाउट कोडिंग. मुझे कोडिंग करने के लिए उतना पैशनेट नहीं है, लेकिन मार्केट पे या स्ट्रैटेजीज पे मुझे बहुत सारा पैशनेट है. सो ये चार्ट जीपीटी है ना, ये मुझे मदद कर रहा है. सो इफ आई गेट दिस काइंड ऑफ हेल्प, आई कैन डेवलप मेनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज. सो आई जस्ट वांटेड टू सी वेदर ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं. सो इफ यू लाइक दिस, प्लीज कमेंट इन इट. And let's see, I will try to create more kind of strategies videos like this. चलो दोस्तों, नमस्ते, enjoy your time, happy weekend, bye bye.